Hello everyone. Today we start discussion on environment related terms and COP29. It is important subject for our UPSC civil services exam. UPSC often asks questions about key environmental phenomena both directly and indirectly. Thus having clarity about some important environmental terms becomes important. Why in the news? The 29th edition of the Conference of the Parties began in Baku, Azerbaijan on Monday, November 11. It is an international climate meeting reorganized annually by the United Nations. Its theme is In Solidarity for a Green World. COP is short for Conference of the Parties. Parties refers to 198 countries that have joined the international treaty called the UN Framework Convention on Climate Change. Parties to the treaty have pledged to take voluntary action to prevent dangerous anthropogenic means human caused interference with the climate system. दरअसल आप सभी लोग समाचारों के माध्यम से अवगत हुए हैं कि 11 नवंबर 2024 को अजरबैजान के बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का 29वां संस्करण शुरू हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु बैठक है। इसका विषय है एक हरित दुनिया के लिए एकजुटता। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का संक्षिप्त रूप है। पार्टीज का तात्पर्य 198 देशों से है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि में शामिल हो गए। संधि के पार्टीज ने जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोकने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई करने का वचन दिया है। Now let us know brief history of COP. In 1992, at the Rio Earth Summit, 154 countries signed a multilateral treaty called the UNFCCC. It aimed to stabilize greenhouse gas concentrations at a level that would prevent dangerous anthropogenic means human-induced interference with the climate system. The treaty came into force 2 years later, and since then countries which is a part of the UNFCCC meet every year at different venues. मीन्स 1992 में रियो अर्थ समिट में 154 कंट्रीज ने यूएनएफसीसीसी नामक एक बहुपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को ऐसे लेवल पर स्थित करना था जिससे क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव जनित मीन्स मानव प्रेरित हस्तक्षेप को रोका जा सके। यह ट्रीटी 2 साल बाद लागू हुई। तब से यूएनएफसीसीसी में शामिल देश हर साल अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड सम एनवायरनमेंट रिलेटेड की टर्म्स दैट विल बी हिटिंग द हेडलाइंस रिगार्डिंग COP29. You know some important terminologies related to environment terminologies like as a climate change, carbon footprint, carbon markets, carbon capture and storage, carbon neutrality, geoengineering और climate engineering कह सकते हैं, and greenhouse gases. Firstly understood one by one. Firstly, let us start climate change.
क्लाइमेट चेंज का हिंदी अर्थ है जलवायु परिवर्तन। According to the governmental panel of climate change, according to the Intergovernmental Panel for Climate Change, means IPCC, climate change refers to a change in the state of the climate that can be identified, means by using statistical tests, by changes in the mean or the variability of its properties, and that persist for an extended period, typically decades or longer. Alternatively, UNFCCC in its Article 1 defines the phenomena as a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to neutral climate variability observed over comparable time periods. मीन्स क्लाइमेट चेंज के लिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ने यह कहा कि जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य जलवायु की स्थिति में होने वाले ऐसे परिवर्तन से है जिसे उदाहरण के लिए सांख्यिकी परीक्षणों का उपयोग करके उनकी विशेषताओं के माध्य या परिवर्तनशीलता में परिवर्तन के द्वारा पहचाना जा सकता है और जो एक विस्तारित अवधि आमतौर पर दशकों या उससे अधिक समय तक बना रहता है। वैकल्पिक रूप से देखा जाए तो यूएनएफसीसी अपने आर्टिकल 1 में इस घटना को जलवायु में होने वाले ऐसे परिवर्तन के रूप में डिफाइन करता है जिसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से मानवीय गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर की संरचना को बदलता है और जो कंपेरेबल समयावधि में देखी गई प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता है। नेक्स्ट डिस्कस कार्बन फुटप्रिंट मीन्स कार्बन पद चिन्ह। It is the amount of greenhouse gases, especially carbon dioxide, released directly or indirectly by an individual or institutions into the atmosphere. It refers to the quantity of GHG produced in our daily life as a result of the combustion of fuels for electricity, heating, transportation and other purposes. ये ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा है, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से वायुमंडल में छोड़ी जाती है। यह बिजली, हीटिंग, परिवहन और अन्य उद्देश्यों के लिए ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप हमारे दैनिक जीवन में उत्पादित जीएचजी की मात्रा को संदर्भित करता है। Means carbon dioxide retains heat released by both the sun and earth's surface and release that heat into the atmosphere. As the burning of fossils fuels and deforestation continues, high concentrations of the greenhouse gases, particularly carbon dioxide, threaten to elevate the planet's average surface temperature to unacceptable levels, resulting in life-threatening consequences. कार्बन डाइऑक्साइड सन और अर्थ की सतह दोनों से निकलने वाली गर्मी को बनाए रखता है और उस गर्मी को वायुमंडल में छोड़ता है। जैसे जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई जारी है, ग्रीन हाउस गैसों विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता ग्रह की औसत सतह के तापमान को अनएक्सेप्टेबल लेवल तक बढ़ाती है। परिणाम स्वरूप जीवन के लिए खतरा पैदा होता है। नेक्स्ट इज कार्बन मार्केट्स। कार्बन मार्केट्स allow the trade of carbon credits with the overall objective of bringing down emissions. These markets create incentives to reduce emission or improve energy efficiency. They allow countries or industries to earn carbon credits for the greenhouse gases emission reductions they make in excess of
their targets. Their carbon credits can be traded to the highest bidder in exchange for money. The buyers of carbon credits can show the emission reductions as their own and use them to meet their reduction targets. For example, an industrial unit that outperforms the emission standards stands to gain credits. Another unit that is struggling to attain the prescribed standards can buy these credits and show compliance with these standards. The unit that did better on the standards earns money by selling credits, while the buying unit is able to fulfill its operating obligations. कार्बन मार्केट कार्बन क्रेडिट के व्यापार की अनुमति देते हैं, जिसका समग्र उद्देश्य उत्सर्जन में कमी लाना है। ये मार्केट उत्सर्जन को कम करने या एनर्जी इफिशियंसी में रिफॉर्म करने के लिए प्रोत्साहित प्रदान करता है। वे देशों या उद्योगों को अपने लक्ष्यों से अधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी करने के लिए कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देते हैं। इन कार्बन क्रेडिट को पैसों के बदले में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेचा जा सकता है। कार्बन क्रेडिट के खरीदार उत्सर्जन में कमी को अपना बता सकते हैं और अपने कमी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक औद्योगिक इकाई जो उत्सर्जन मानकों से बेहतर प्रदर्शन करती है उसे क्रेडिट मिलता है, और एक अनदर यूनिट्स जो निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है वो इन क्रेडिट को खरीद सकती है और इन मानकों का अनुपालन दिखा सकती है। स्टैंडर्ड पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली यूनिट्स क्रेडिट बेचकर पैसा कमाती है, जबकि खरीदने वाली इकाई अपने परिचालन दायित्वों मींस ऑपरेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट इज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, CCS. Carbon capture storage refers to a host of different technologies that capture carbon dioxide emission from large point sources like refineries or power plants and trap them beneath the earth. It is important to note that CCS is different from carbon dioxide removal, where carbon dioxide is removed from the atmosphere. Carbon capture, utilization and storage is a step further than CCS and uses the captured carbon in the production of goods such as alcohols, biofuels, plastics और कंक्रीट। मतलब यह हुआ कि CCS कई अलग अलग तकनीकों को संदर्भित करता है जो रिफाइनरियों या बिजली संयंत्रों से जैसे बड़े बिंदु स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को पकड़ते हैं और उन्हें पृथ्वी को नीचे फंसा देते हैं। यहां पर यह जानना आवश्यक है कि CCS कार्बन डाइऑक्साइड हटाने से अलग है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटा दिया जाता है। कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण CCS से एक कदम आगे है और एल्कोहल, जैव ईंधन, प्लास्टिक या कंक्रीट जैसे सामानों के उत्पादन में कैप्चर किए गए कार्बन का उपयोग करता है। नेक्स्ट इज कार्बन न्यूट्रलिटी, मीन्स हिंदी में कहेंगे कार्बन तटस्थता। कार्बन न्यूट्रलिटी रिफर टू एन एज नेट जीरो is a state in which a country's emissions are compensated by absorptions and removal of greenhouse gases from the atmosphere. Absorptions of the emission can be increased by creating more carbon sinks, such as forests,
while removal of gases from the atmosphere requires futuristic technologies such as carbon capture and storage. Interestingly, the Intergovernmental Panel on Climate Change, means IPCC, has marked 2050 as the deadline by the which the world must reach net zero if it wants to limit global warming to 1.5 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब यह है कि कार्बन तटस्थता, जिसे हम नेट जीरो भी कहते हैं, एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भी देश के उत्सर्जन की भरपाई वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करके और हटाकर की जाती है। वनों जैसे अधिक कार्बन सिंक बनाकर उत्सर्जन के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है, यानी यदि ज्यादा से ज्यादा जंगलों का आकार बढ़ाया जाए, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं, उससे इसके उत्सर्जन के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। जबकि वायुमंडल से गैसों के हटाने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसी भविष्य की तकनीकों की आवश्यकता होती है। यहां पर यह समझना दिलचस्प है कि क्लाइमेट चेंज पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ने 2050 को जो समय सीमा के रूप में चिन्हित किया है, उसके अनुसार यह है कि दुनिया का ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए नेट जीरो तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। यानी एक प्रकार से उनकी आईपीसीसी की एक चेतावनी है कि हमें इस पर अंकुश लगाना होगा। नेक्स्ट इज जियो इंजीनियरिंग और क्लाइमेट इंजीनियरिंग, मीन्स हिंदी में हम कहेंगे भू इंजीनियरिंग या जलवायु इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग refers to any large scale attempt to alter the Earth's neutral climate system to counter the adverse impacts of global warming. Two broad geoengineering options are being explored: solar radiation management and carbon dioxide removal technologies. Solar radiation management, in which materials are proposed to be deployed in space to reflect incoming solar rays and prevent them from reaching Earth. Then there are carbon dioxide removal technologies, which include carbon capture and sequestration. While they offer fixed solution for reducing emissions or temperatures, they are not particularly viable. The only method being tried out in practice is CCS. मतलब भू इंजीनियरिंग से तात्पर्य है कि पृथ्वी की प्राकृतिक जलवायु प्रणाली को बदलने के किसी भी बड़े पैमाने के प्रयास से है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला किया जा सके। यहां पर देखिए, भू इंजीनियरिंग विकल्पों की खोज की जा रही है। दो भू इंजीनियरिंग विकल्पों की खोज क्या की जा रही है? एक जो है सौर विकिरण प्रबंधन, जिसको हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन यानी सीडीआर। इन दोनों टेक्नोलॉजी, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट में आने वाली सौर किरणों को परावर्तित करने और उन्हें अर्थ तक पहुंचने से रोकने के लिए स्पेस में सामग्री तैनात करने का प्रस्ताव है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन टेक्नोलॉजी में कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन शामिल है। हालांकि ये उत्सर्जन या टेम्परेचर को कम करने के लिए त्वरित समाधान प्रदान करते हैं, लेकिन वे विशेष रूप से व्यवहार्य नहीं है। व्यवहार में आजमाया जा रहा एकमात्र तरीका CCS है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि हमेशा यूज होता है। ग्रीन हाउस गैसेस आर दोज गैसेस इन द अर्थ्स atmosphere that trap heat. They allow sunlight to pass through the atmosphere but prevent the heat that sunlight brings from returning into space.
Essentially, greenhouse gases acts like a blanket that envelops our planet and insulates Earth from the cold of space. This process of maintaining a warmer temperature is called the greenhouse effect. The most notably, greenhouse gases are water vapor, carbon dioxide, methane, ozone, and nitrous oxide. These gases occur naturally and are a boon for the planet. In their absence, there would not be the greenhouse effect, without which there would not be liquid, water, and any form of life. मीन्स ये हुआ इसका मतलब कि ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद वे गैसें हैं जो गर्मी को रोकती हैं। वे सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल से गुजरने देती हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश से आने वाली गर्मी को स्पेस में वापस जाने से रोकती हैं। अनिवार्य रूप से ये जानना जरूरी है कि ग्रीन हाउस गैस एक कंबल की तरह काम करती है जो हमारे ग्रह को ढक देता है और अर्थ को अंतरिक्ष की ठंडा से बचाता है। गर्म तापमान बनाए रखने की इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। सबसे यहां पर जानना आवश्यक है कि ग्रीन हाउस गैसेस वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये गैसेस नेचुरल रूप से पाई जाती हैं और ग्रह के लिए वरदान है। इनकी एब्सेंस में ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, जिसके बिना तरल पानी और किसी भी प्रकार का जीवन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन is generate some questions generate like is what is carbon footprint? This is the very important questions belongs to this topic. And next question is how is carbon capture and storage related to carbon neutrality? मतलब यह हुआ कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज कार्बन तटस्थता से कैसे संबंधित है। तो देखिए इस लेक्चर्स से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं जो आपके मेन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। अब इन क्वेश्चंस का आंसर लेक्चर्स में है, आप उसे समझ करके आंसर राइटिंग करें और आंसर राइट करके आप वैल्यूएशन कराएं। तो आज इतना ही, थैंक यू।